Hello student, my name is Alok Rai and welcome all of you on St. Angel Public School YouTube channel. Today I am here to teach you class 10th computer science, and in this I am teaching you part B unit 3 and name of the unit is spreadsheet intermediate. What is the name of the unit is spreadsheet intermediate. Okay. Today we are discuss a very important topic, and that name is conditional formatting. What is the name is conditional formatting. This is the second lecture. In previous video we also discussed about the conditional formatting. Okay, today we are discuss removing the conditional formatting. Okay, after after applying the condition formatting, condition formatting, if you want to remove it, then we can do so easily. तो हम इसे क्या कर सकते हैं, बहुत ही easily कर सकते हैं. Perform following mention step to remove conditional formatting. Perform following mention step to remove conditional formatting. First step, under conditional formatting menu, click on clear rule. किस पे क्लिक करेंगे, क्लियर रूल्स. A sub menu with two options will appear. Clear rule from selected cells and clear rule from entire sheet. Select the option which you want to apply. Select the option which you want to apply. तो चलिए हम इसे करके देखते हैं. तो मैंने एक एक्सेल में मैंने बना रखा है, एक टेबल बना रखा है और उसमें कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई कर रखा है. अब इस सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सेलेक्ट करना होगा. मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, पूरे सीट को मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया. आफ्टर दैट वी क्लिक ऑन द होम टैब एंड go inside style group and click on the conditional formatting option. When we click on it, then a drop down menu will appear, and here we click on clear rule. Here we click on clear rule. When we click on it, a sub menu will appear. Two sub menu will appear. First is clear rule from selected cell and clear rule from entire sheet. Then we click on it according to our need. If we want to remove all the rule from entire sheet, then we click on it. And if we want to remove the rule from only selected cell, then we use it. Okay, we want to remove all the rule from the entire sheet, then we click here. When we click here, you can see that all the rule is removed from the from the entire sheet. Okay, after that we need to know highlighting the selected row. Highlighting the selected row, this is the most important feature of Excel. This is the most important feature of Excel. Through this feature we can highlight the whole row of respective data. Suppose we want to color the row of the employee who are getting a salary more than 25% with yellow color. Perform following mention step to highlight this selected row. Perform following mention step to highlight this selected row. First step, select the range of two or select the range of row or entire table. Select the range of row or entire table. Okay, second step, in conditional formatting drop down menu, click on new rule. The new formatting rule dialog box will appear. Third step, click on use formula to determine which cell to format. यूज फार्मूला, कौन से ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, यूज फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट अंडर द सेलेक्टेड रूल टाइप ऑप्शन. अंडर द सेलेक्टेड रूल टाइप ऑप्शन में किसमें हम जाएंगे, अंडर द सेलेक्टेड रूल टाइप ऑप्शन में जाएंगे. ठीक, उसके बाद फोर्थ स्टेप, under format value
where this formula is true under format value where this formula is true टाइप इक्वल टू क्या करेंगे हम टाइप करेंगे इक्वल टू ये कहाँ पे टाइप करेंगे फॉर्मेट वैल्यू दिस फॉर्मूला इज ट्रू यहाँ पे हम क्या इस यहाँ पे जाके हम क्या टाइप करेंगे इक्वल टू को टाइप करेंगे किसको टाइप करेंगे इक्वल टू को और उसके बाद हम क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट सेल ऑफ द फील्ड सैलरी हम सैलरी के फील्ड को हम सेलेक्ट करेंगे जैसे ही हम सैलरी के फील्ड को सेलेक्ट करेंगे हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा $C$3 अब यहाँ पे देखिए $C और $3 क्या है ठीक ना तो यहाँ पे देखिए जो C है हमारा ये हमारा कॉलम है और जो हमारा 2 है ये रो है तो देखिए डॉलर क्यों लगाते हैं डॉलर हम जब लगा देते हैं तो जो हमारा ऑपरेशन होता है वो स्पेसिफिक प्लेस पे ही होता है जैसे हमने C के आगे डॉलर लगा दिया अब जो भी हमारा कंडीशन चेक होगा वो सिर्फ C कॉलम में चेक होगा कहाँ पे चेक होगा C कॉलम में चेक होगा ऐसे ही जब मैंने $2 लगा दिया तो अब ये कहाँ पे चेक होगा C कॉलम में दूसरे रो पे किस पे चेक होगा दूसरे रो पे उसके अलावा और किसी ये सेल का एक एड्रेस है उसके अलावा किसी और पे नहीं होगा तो हम क्या करेंगे हम डॉलर को डिलीट कर देंगे कहाँ से डॉलर को डिलीट कर देंगे 2 के आगे से हम क्या करेंगे डॉलर को डिलीट कर देंगे ठीक ना और उसके बाद हम टाइप क्यों 2 के आगे से हम डॉलर डिलीट कर रहे हैं ये भी जान लीजिए क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 2 के आगे के सारे हमारे पास जो रो हैं सारे रो में जो वैल्यू है 2 के आगे 3 वाले रो में भी वैल्यू है 4 वाले रो में भी वैल्यू है 5 वाले रो में भी वैल्यू है तो इन सारी वैल्यू को चेक करना है और ये सारी वैल्यू किस कॉलम में है सी कॉलम में है तो कॉलम तो हमारा फिक्स रहेगा इसलिए कॉलम के आगे हम डॉलर रहने देंगे लेकिन हमारा क्या नहीं फिक्स है रो हमारा फिक्स नहीं है इसलिए हम रो के आगे से डॉलर को क्या किया हमने हटा दिया और टाइप किया इज ग्रेटर देन 25,000 हमें क्या चेक करना था इज ग्रेटर देन 25,000 पे हमें येलो कलर से हाईलाइट करना था ठीक तो हम क्या टाइप करेंगे इज ग्रेटर देन 25,000 उसके बाद हम क्या करेंगे क्लिक ऑन द फॉर्मेट हम किस पे क्लिक करेंगे क्लिक ऑन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स विल अपेयर फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स हमारे पास क्या होगा अपेयर हो जाएगा क्लिक ऑन फील्ड टैब और हम किस पे क्लिक करेंगे फील्ड टैब पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट बैकग्राउंड कलर येलो एंड क्लिक ऑन ओके और हम बैकग्राउंड कलर क्या सेलेक्ट करेंगे येलो और उस पर हम क्या करेंगे ओके क्लिक करेंगे एंड आफ्टर दैट नाउ न्यू फॉर्मेटिंग रूल डायलॉग बॉक्स विल अपेयर अगेन और न्यू फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स विल अपेयर अगेन click on OK the condition specify will appear with yellow color ओके चलिए हम इसका एक इमेज देख लेते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होगा सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा अपने टेबल को जिस टेबल पे हम ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं उसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे होम टैब पे जाएंगे और होम टैब पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे तो हम किस पे जाएंगे न्यू रूल पे जब हम क्लिक करेंगे किस पे क्लिक करेंगे जैसे ही न्यू फॉर्मेटिंग रूल पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे न्यू फॉर्मेटिंग रूल डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे लास्ट वाला हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट ओके यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम कहाँ पे आएंगे हम फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू पे क्या करेंगे बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे जिस सेल में जिस उस कॉलम के सेल को सेलेक्ट करेंगे जिस कॉलम की वैल्यू को हमें क्या करनी है चेक करनी है सी कॉलम की वैल्यू को चेक करनी है तो मैं क्या करूंगा सी कॉलम में और कहाँ से चेक करनी है ये 25,000 से हमें चेक करनी है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा ठीक ना उसके बाद जब हमारा फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा तो इस तरह से हमारे पास क्या आएगा हमारा टेबल कलर होके आ जाएगा हाईलाइट होके आ जाएगा तो चलिए इसे हम करके देखते हैं हमें ज़्यादा समझ में आएगा
बताने से अच्छा है प्रैक्टिकल करके देखते हैं, हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैंने क्या किया, एक मैंने ओपन कर लिया, मैंने क्या किया, एक ओपन कर लिया एक्सेल सीट, और इसमें मैंने टेबल पहले से बना रखा है, उसको मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। एंड आफ्टर दैट वी क्लिक ऑन होम टैब एंड वी गो इनसाइड स्टाइल ग्रुप एंड क्लिक ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन। when we click on it, new rule option is here। when we click on it, हमारे पास क्या खुल के आएगा, न्यू फॉर्मेटिंग रूल डायलॉग बॉक्स हमारे पास खुल के आएगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक बॉक्स आएगा, फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे और इक्वल टू टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे हम, इक्वल टू टाइप करेंगे। उसके बाद हम उस कॉलम पे ले जाएंगे जिस कॉलम में प्रेजेंट सेल पे हम क्या करेंगे, अपना अपना कंडीशन चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस पे लाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए डॉलर आ गया $2। अब देखिए डॉलर क्या करता है, फिक्स कर देता है, यानी अब $C है तो इसका मतलब ये है सी कॉलम के अलावा और ये कहीं नहीं जाएगा। $2 है यानी अब ये सेकेंड नंबर सेल के अलावा और कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें कॉलम सी में सारे सेल को क्या करना है, 2 3 4 5 6 7 सारे सेल को हमें क्या करना है, सारे सेल को हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, डॉलर को 2 के सामने से हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक। और उसके बाद हमें क्या चेक करना है, जहाँ पे सैलरी क्या हो, इज ग्रेटर देन हो 25,000, क्या हो, इज ग्रेटर देन हो 25,000। और उसको हमें किससे हाईलाइट करना है, फॉर्मेट में जाएंगे, हम कलर डिसाइड करेंगे किस कलर से हाईलाइट करना है। तो फॉर्मेट में मैं गया, फिल पे क्लिक किया और मुझे किससे हाईलाइट करना है, येलो कलर से हाईलाइट करना है, तो मैं येलो पे क्लिक कर दूंगा। अब जब मैं येलो पे क्लिक कर दिया तो अब मैं किस पे क्लिक करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा। कहाँ पे क्लिक करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा। और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, न्यू फॉर्मेटिंग रूल, इस पे भी हमें क्या करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो देखो जैसे ही हम अप्लाई करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, 25,000 से ज़्यादा जिनकी वैल्यू है उनका पूरा रो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप 25,000 का भी रो हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने 25,000 से ग्रेटर देन पे किया है, इसलिए ग्रेटर देन वाले ही सिर्फ हाईलाइट हो रहे हैं। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये कई बार आप लोग करेंगे तभी आएगा, 1-2 बार में आप लोगों को करने से नहीं आएगा, ठीक ना। क्योंकि ये काफ़ी अच्छा फीचर माना जाता है और इसमें काफ़ी फार्मूला यूज करना पड़ रहा है। इस वजह से ये थोड़ा सा आप लोगों को पहली बार ऐसा फार्मूला यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत आएगी, ठीक ना। लेकिन फिर भी आप जब करेंगे तो ये हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।